نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کی ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا اور دنیا والوں کے سامنے یہ حقیقت کھول دی کہ اولاد بے مثل اور بے مثال نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جس صحابی سے زیادہ محبت کرتے تھے تو ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ انس بن مالک کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میری اولاد اتنی بڑی کہ جب حجاز کی سرزمین پہ طاعون کی وبا پھیلی، لوگ کثرت سے مرنے لگے تو اس وبا کے دوران میں نے اپنی اولاد میں سے یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جو بچ گئے وہ اس کے علاوہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے سامنے اگر گلاس ہے اس میں پانی ہے تو قیامت میں اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرتا ہوں تو مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پانی کیسے حاصل کیا تھا اور کیسے استعمال کیا تھا۔ اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ضرور بھی ضرور سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ادبوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اچھی تربیت کرو، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہمارے اس معاشرے میں عام طور پہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ
ये ज़रा आवाज़ कम कर दें, कहाँ है वो बंदा? आवाज़ ज़रा कम रखें ना, लोगों का, आप लोगों की आवाज़ पहुँच रही ना? जी हाँ, खामखा बेजा आवाज़ को बुलंद करना ये मस्जिद के आदाब के भी खिलाफ। ज़रूरत के मुताबिक आवाज़ हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि बात समझानी मकसूद होती है। तो हमारे मुआशरे में औलाद की तरबियत के हवाले से गफलत का मुजाहरा किया जाता है, फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर मज़े की बात यह है कि बच्चा बिगड़ जाता है, फिर भी वालिदैन ये नहीं कहते कि हमने बच्चे की सही तरबियत नहीं की, बच्चा बिगड़ गया। नहीं, ये भी नहीं कहते कि हमारा बेटा बड़ा बदबख्त था कि वो बिगड़ गया। नहीं, वो कहेंगे हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा था, बस माहौल ने ख़राब कर दिया। हमारा बेटा तो बड़ा सआदतमंद था, बस दोस्तों ने बिगाड़ दिया। वालिदैन न तो अपनी ऊपर बात आने देते हैं, न बेटे पर बात आने देते हैं, सीधा इल्ज़ाम माहौल पे लगाते हैं, इल्ज़ाम उसके दोस्तों पे लगाते हैं। वो उस दोस्त का वालिद कहते हैं मेरे बेटे को इसने बिगाड़ दिया, इसका वालिद कहता है मेरे बेटे को उसने बिगाड़ दिया। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि मेरा अपना बेटा बदबख्त था या मेरी अपनी तरबियत में कमी थी। गोया कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता कि गलती मेरी थी। आइए हम पूछते हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब बच्चा बिगड़ता है तो उसकी बिगाड़ का जिम्मेदार कौन होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन इस्लाम का मिजाज लेके दुनिया में आता है। फितरी तौर पे, तबई तौर पे बच्चा दीन को पसंद करता है। वो जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना ही दीन की तरफ मैलान ज़्यादा होता है। बिल्कुल छोटा होता है, किसी ने उसको अल्लाह से मुतारफ़ नहीं कराया होता, किसी ने उसको रसूलुल्लाह से मुतारफ़ नहीं कराया होता, लेकिन अपनी अम्मी को नमाज़ पढ़ते हुए देखता है तो वो भी मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है। किसी को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो वो भी कुरान के सामने बैठ के हिल हिल के कुरान पढ़ने की कोशिश करता है। बच्चे को किसने समझाया है? बच्चे की खमीर में दीन की मोहब्बत शामिल कर दी गई थी, उसके मिजाज और जिबिल्लत में दीन इस्लाम की मोहब्बत शामिल कर दी गई थी। फिर बच्चा जूजू बड़ा होता है, बिगड़ता है, दीन से दूर होता जाता है। क्यों दूर होता है? कौन दूर करता है? बच्चा बिगड़ जाए कौन जिम्मेदार है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अबवाहु युहव्विदानिही, वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, औ युनस्सिरानिही, वालिदैन उसको नसरानी बना देते हैं, औ युमज्जिसानिही, वालिदैन उसको मजूसी बना देते हैं। बच्चा अगर यहूदी बनता है यानी यहूदियों की रविश पे चलता है तो जिम्मेदार वालिदैन हैं। बच्चा ईसाइयों के अंदाज़ो अतवार इख्तियार करता है, जिम्मेदार वालिदैन हैं। बंदा मजूसियों की तहजीब और सकाफत अपनाता है, जिम्मेदार वालिदैन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की बिगाड़ का जिम्मेदार वालिदैन को करार दिया है। वालिदैन को चाहिए कि औलाद की पैदाइश पे खुश होते हैं, नेमत है, खुश होना चाहिए। औलाद की सहूलत के लिए, औलाद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं, करनी चाहिए, इस पे वालिदैन को सवाब मिलता है। लेकिन दूसरी जानिब वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत से तो गाफिल न हो। ऐसा तो न हो ना कि यही बच्चा जिसने क़ियामत के दिन हमारी दराजात की बुलंदी का ज़रिया बनना था, ये हमारे लिए क़ियामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का ज़रिया बन गया। औलाद की तरबियत करें, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत यह है कि हम औलाद की तरबियत कर नहीं सकते। बाज़ वालिदैन तो वो होते हैं जो तरबियत की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। वो कहते हैं बच्चा पैदा हो गया, अच्छा लिबास, अच्छा जूता, अच्छा खाना पीना, अच्छा मकान। अभी बच्चा छोटा है, उसके लिए अलग प्लाट रख लिया, अलग दुकान बना ली कि बच्चा बड़ा होगा तो दुकान अपनी होनी चाहिए। प्लाट अलग अलग होने, 4 बच्चे हैं तो 4 दुकानें पहले से बना लेते हैं। वालिदैन समझते हैं कि बस हमने काम कर दिया, यही हमारा फ़र्ज़ था, शादी करवाई, यही हमारा फ़र्ज़ था। यानी अब तरबियत को अपना फ़र्ज़ ही नहीं समझते बाज़ वालिदैन। और बाज़ वालिदैन फ़र्ज़ समझते हैं लेकिन उनके पास वक़्त नहीं होता। उनके पास फैक्ट्री को देने के लिए वक़्त होता है, दुकान को देने के लिए वक़्त होता है, गाय और भैंसों को देने के लिए वक़्त होता है,
لیکن اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہوتا. اور دیہاتوں میں لوگ پورا دن گائے اور بھینسوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خدمت کر سکتے ہیں, بیٹے کی تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. یہ دوسرا طبقہ ہو گیا. تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین بیچاروں کی خود تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اولاد کی کیا تربیت کریں گے, چنانچہ اولاد کی تربیت کرتے کرتے اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں, طریقہ ہی نہیں آتا. تو 3 طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں. یا تو لوگ تربیت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, یا تربیت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, یا پھر تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو ایسی صورت میں ہمارے معاشرے میں ایسی تربیت گاہ ہونی چاہیے, ایسا مربی معلم ہونا چاہیے کہ ہم اپنا بچہ ان کے حوالے کر دیں, وہ ہمارے بچے کی تعلیم کا بھی اہتمام کرے, تربیت کا بھی اہتمام کرے, اس کو اچھا صاف ستھرا خوبصورت سلجھا ہوا انسان بنا کے پھر ہمیں واپس کر دے. ایسے مربی اور ایسی تربیت گاہ کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کی صورت میں ایسی تربیت گاہوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. یہ جو ہماری اس سرزمین پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے. اور ایسی نعمت یہ لوگ ترستے ہیں ایسے مدارس کے لیے کہ جس میں بچوں کی تعلیم بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے, استاد کو فکر ہوتی ہے کہ میرے شاگرد کا وقت ضائع نہ ہو جائے, اس کے اخلاق برباد نہ ہو جائیں, اس کی علمی معیار میں کمی نہ آ جائے. یہ ایسے مدارس, ایسی تربیت گاہیں, کہیں باہر چلے جائیں, باہر کی دنیا میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں, مجاہدے کیے ہیں, امت کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے. اور دینی مدارس کی صورت میں یہ تربیت گاہیں ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن ہم مدرسے میں اپنے بچے کو نہیں بھیجتے. کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. بھائی توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. 3 بڑی وجوہات ہیں اور بے بنیاد ہیں. بے بنیاد خدشات کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں بھیجتے. پہلا خدشہ یہ ہے کہ بچے کو اگر ہم حافظ قاری بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے. یہ پہلا خدشہ ہے, کھائے گا کہاں سے. اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ خدشہ آج کا نہیں ہے, یہ 100 سال کا پرانا نہیں ہے, یہ 14 صدیاں کا پرانا خدشہ ہے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے, زندہ درگور کیا کرتے تھے. کیوں؟ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو. چنانچہ مشرکین مکہ اس ڈر سے بچوں کو قتل کرتے تھے کہ بڑے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے. اور آج کا مسلمان بھی وہی کچھ کرتا ہے کہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مشرکین اپنے بچوں کو جسمانی موت مارتے تھے, اور آج کا مسلمان اپنے بچے کو روحانی موت مارتا ہے. روحانی موت کیسے مارتے ہیں کہ بچے کی تربیت کرنے کی تربیت نہ کر سکے, قرآن و حدیث کی تعلیم دلوانی تھی نہ دلوا سکے. کہاں کر دیا؟ اسکول اور کالج. اسکول اور کالج کا میں بالکل مخالف نہیں ہوں, بالکل مخالف نہیں ہوں, لیکن وہ اسکول اور کالج جس کی تعلیم ہماری ایمان کی قیمت پہ ہمیں ملتی ہے, تو ایسے ہمیں انگریزی کی تعلیم نہیں چاہیے. ایسا انجینئر, ایسا ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے جہاں پہ ایمان کے سودے پہ ہمیں ڈاکٹر ملتے ہیں, معاشرے کو نہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنا بیٹا جس کالج میں میں بھیج رہا ہوں, اس کالج میں لادینیت, الحاد, دین بیزاری کی تربیت دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے, آپ لوگ اس معاشرے کی اونچ نیچ سے ہم سے بہتر واقف ہے کہ کالجوں میں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے. جن انگریزی تعلیمی اداروں میں نوعمر بچیوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے, اس کے باقاعدہ نمبر لگتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے باقاعدہ ان کو سٹیج پر نچایا جاتا ہے, ہم ان تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. کس خوف سے کہ اگر ہم حافظ بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے, ہم قاری بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے. لہٰذا بچوں کو ہلاکت میں دھکیل رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کرتا, شاید 2 سال پہلے کی بات ہے یا 1 سال پہلے کی بات ہے. ہمارے اس وطن عزیز کی ایک ذمہ دار شخصیت نے, میں بتاؤں, یہ
वफाकी वज़ीर था, वज़ीर मुमलिकत। वज़ीर मुमलिकत ने रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में, बंद कमरे में नहीं, खुले मैदान में, दो चार बंदों के दरमियान नहीं बल्कि हजारों के मजमे में इस बात का एतराफ़ कर लिया कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 70% बच्चे और बच्चियां मुनशियात इस्तेमाल करती हैं। ये उनका इकरार है, 70% बच्चे और बच्चियां मुनशियात इस्तेमाल करती हैं। लाहौर की लम्ज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से किसी ने कहा कि सुना है कि लम्ज यूनिवर्सिटी में 80% बच्चे और बच्चियां शराब पीती हैं। 80%? कितने लगा झूठ है, 70% पीते हैं। यानी 70% तो उसने मान लिया। और आपको पता है कि जब शराब पिलाई जाती है तो शबाब लुटता है, शबाब फिर लुटते हैं, फिर जवानियां लुटती हैं, तो वही बच्चे और बच्चियां इकट्ठे रहते हैं, हॉस्टल इकट्ठे, तालीम निज़ाम इकट्ठा, क्लासरूम इकट्ठे, शराब पीते हैं। हमें नहीं पता होता हमने अपना बच्चा भेजा हुआ है। बच्चे की रातें हॉस्टल में गुजरती हैं, होटल में गुजरती हैं, क्लबों में गुजरती हैं, हमें कोई नहीं पता। क्यों ऐसा करते हैं? अपने बच्चे को हम इस खतरे से दो चार क्यों करते हैं? उसकी ईमान को खतरे में क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ना कि बच्चा बड़ा होगा तो खाएगा कहां से। तो लिहाजा खाने की फिक्र में हम अपने बच्चों को हलाक कर रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मुशरिकीन मक्का जिस्मानी मौत मारते थे और आज का मुसलमान अपने बच्चे को रूहानी मौत मार रहा होता है। और मैं बताऊं कि जिस्मानी मौत मारना इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना कि रूहानी मौत मारना बड़ा जुल्म है। मुशरिकीन मक्का तो अपने बच्चों को कब्र में पहुंचाया करते थे, हम तो अपने बच्चों को जहन्नम में धकेल रहे होते हैं। तो लिहाजा हम अपने बच्चों को कारी नहीं बनाते, हाफिज नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते। क्यों? बच्चा बड़ा होगा तो खाएगा कहाँ से। मैंने पहले कहा था कि यह ख़तरा बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआशरे में हाफिज भी आपको नज़र आते हैं, कारी भी नज़र आते हैं, उलमा भी नज़र आते हैं। अल्लाह खिलाता है और अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, काबिल रश्क ज़िंदगी है। कारी साहब आप लोगों के सामने मौजूद हैं, ये आपके दरमियान मौजूद हैं, आप लोग देखते रहते हैं। हज़रत कारी साहब को अल्लाह ताला ने इस कुरान की निस्बत से, कुरान की खिदमत की बदौलत इज़्ज़त भी अता फरमाई है, रोज़ी भी, फराख रोज़ी भी है, सुकून की ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है। आप लोगों ने कभी देखा है कोई कारी साहब ऐसे हों जिसके घर में रात का खाना न पका हुआ हो कि आज हम नहीं खाएंगे क्योंकि हम तो कारी हैं, इंजीनियर होते तो हम खाते, हम कारी हैं लिहाजा हम नहीं खाएंगे। या कभी आप लोगों ने कारी साहब को देखा हो कि उसके जिस्म पे लिबास न हो। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि तुम 3 पीस पहनते, हम 6 पीस पहनते हैं। 6 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खुला डुला हमारे एक एक जुब्बा, ये आम लोगों के 2 कमीज़ों के बराबर तो एक जुब्बा होता है। 5-6 मीटर तो हमारी सिर्फ पगड़ी होती है, 4 मीटर आप लोगों का सूट होता है, हमारी 6 मीटर पगड़ी होती है। पगड़ी भी है तो रुमाल भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद साफ सुथरा चमकता हुआ उजला धुला हुआ इस्त्री शुदा अल्लाह ताला हमें देता है। रशक करते हैं लोग हमारी ज़िंदगी पे। मैं सिर्फ समझाने के लिए, अल्लाह ताला मुझे रिया से बचाए, आप लोग जो होते हैं ना ईद के लिए गिनते हैं कि हमारे घर में कितने बंदे हैं, उतने सूट हमने ख़रीदने हैं। अगर 6 बंदे हैं तो हमने 6 सूट खरीदने हैं, 7वां नहीं खरीदते, कोशिश करते हैं कि कम से कम पे गुजारा हो जाए। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि ईद आती है अल्हम्दुलिल्लाह 12, 15, 16 सूट तो मैं शागिर्दों में वैसे तकसीम कर देता हूँ। न कभी हमने कपड़े की तंगी महसूस की है, न खाने की तंगी महसूस की। मेरा मकसद ये कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं कि बच्चे को हाफिज बनाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। देखते क्यों नहीं है? खुली आंखों से देख के हाफिज खाते नहीं है, हाफिज पहनते नहीं है, हाफिजों को मुआशरे में अल्लाह ताला ने फराख और हलाल रोज़ी नहीं दी हुई, हमें क्यों नज़र नहीं आता? वो बेबुनियाद खदशा है कि बच्चे को हाफिज कारी बनाओगे तो खाएगा कहाँ से। मेरे भाइयों, मेरे पास वक़्त नहीं है कि मैं आपको तफसील से समझाऊँ कि अल्लाह ताला कैसे इन लोगों को खिलाता पिलाता है। लेकिन इतनी सी बात है कि ये लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं, रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं। मैं तमाम तर खामियों से भरा हुआ एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी बैठक में अगर मेहमान है और मेरे घर में खाना मौजूद है और मेरे मेहमान ने खाना नहीं खाया है, मेरी गैरत मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि मैं अपने मेहमान को खाना न खिलाऊँ।
مجھے میری غیرت اجازت نہیں دیتی، تو وہ اللہ جو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے گھر میں اس کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نہیں کھلائے گا تو کس کو کھلائے گا؟ لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال وادی تیہ میں من و سلوہ کھلایا، نہ انہوں نے 40 سال میں ایک دانہ کاشت کیا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی فیکٹری تھی۔ تو اگر بنی اسرائیل جیسے ٹیڑھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال من و سلوہ کھلائے تو وہ دین کا کام کرنے والے قراء اور حفاظ کو نہیں کھلائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی ہے۔ پکی کا معنی یہ ہے کہ اب ہمارا معاش کا مسئلہ حل ہو گیا، اب ہر مہینے 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ ہمیں ملیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ہماری حکومت کون سی ہے؟ خیرات پہ چلنے والی، قرضوں پہ چلنے والی، خیرات پہ چلنے والے۔ ہمارے حکمران بیچارے کشکول لے کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جس مرتبہ زیادہ خیرات مل جائے واپس آتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ دورہ بڑا کامیاب رہا، کیونکہ خیرات زیادہ ملی۔ کچھ خود کھا لیتے ہیں، کچھ ہمیں کھلاتے ہیں۔ خیرات پہ سلسلہ چل رہا ہے، قرضوں پہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ قرضوں اور خیرات پہ چلنے والی حکومت کی نوکری کسی کو مل گئی تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ اب ہمارا معاش کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو جو بندہ زمین اور آسمان کے خزانوں کے مالک پروردگار کی نوکری کرے اور اس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ حکومت سے تنخواہ مل رہی ہے، بڑے مطمئن ہیں، اور اللہ کے خزانوں پہ ہمیں اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارا تعلیمی سال کا اختتام تھا اور ہم اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر کے عالم بن کے گھروں کی طرف آ رہے تھے، تو وہ ہمارا آخری دن تھا مدرسے میں۔ تو طلباء کو جیسے جلدی ہوتی ہے، انہوں نے جلدی گھروں کو پہنچنا ہوتا ہے، ان کو تو تھی جلدی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو آج نہیں جاؤں گا، آج مدرسے میں رہوں گا، رات کو استادوں سے ملاقات بھی کر لوں گا، ان سے کچھ نصیحت بھی حاصل کر لوں گا، کچھ ان سے دعائیں کرواؤں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے دن بھی اس طرح دسمبر کے تھے اور شدید سردی کا موسم تھا، تو اپنے استادوں کے ایک استاد کے کمرے میں گیا اور ایک استاد سے میں نے دعا بھی کروائی، کچھ ان سے نصیحت کی بات بھی ان سے سن لی۔ ہمارے ایک استاد ہیں، اس وقت بھی الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کر دے۔ تو عشاء کے بعد میں ان کے کمرے میں گیا، میں نے کہا کہ استاد جی میرے پاس تو نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، میرے لیے دعا بھی کریں اور کچھ مجھے نصیحت بھی فرمائیں۔ تو استاد نے مجھے فرمایا کہ بیٹا، ہمارے اس معاشرے میں دستور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے۔ تو اگر گندم کی کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے تو آپ دین کا کام کرو گے تو اللہ آپ کو اچھا نہیں کھلائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا آپ دین کا کام کریں اور معاش کے حوالے سے بالکل مطمئن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایسی روزی دے گا، ایسی زندگی دے گا کہ بڑے بڑے دنیا دار آپ کی زندگی پہ رشک کریں گے۔ الحمدللہ استاد کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ آج حرف بحرف صحیح مجھے سب سچے ثابت نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس خوف سے، اس خطرے سے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں کہ بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کھلاتا ہے جو اللہ کی وجود کے منکر ہیں، جو کبھی اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے۔ تو جو 5 وقت اللہ کے سامنے پیشانی زمین پہ رگڑتا ہے تو ان کو اللہ کیسے نہیں کھلائے گا؟ لہٰذا مطمئن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ یہ پہلا خدشہ ہے ہمارے دل و دماغ میں۔ دوسرا خدشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ حافظ تو بنائیں گے لیکن حافظ قاری کا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ حافظ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، مولوی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بناؤں گا بیٹے کو، ڈاکٹر کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور انجینئر کی بڑی عزت ہوتی ہے، بیوروکریٹ کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو ہم نے عزت کو سمجھا ہی نہیں کہ عزت ہوتی کیا ہے۔
मैं आपको पहले बताऊं कि जिसको हम इज्जत समझते हैं वो इज्जत है ही नहीं। आप लोग देखते हैं कि अगर फौजी अफसर छावनी से गुजर रहा होता है और सारे सिपाही उसको सलूट मार रहे होते हैं, हम समझते हैं कि ये इज्जत है। थानेदार थाने में दाखिल हो गया, सारे लोग खड़े हो गए, हम समझते हैं ये इज्जत है। कोई अफसर दफ्तर में दाखिल हो गया तो सारे मुलाजिमीन खड़े हो गए, हम समझते हैं कि ये इज्जत है। हालांकि ये इज्जत नहीं है, गलत फहमी है। अभी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अचानक किसी ने दरमियान में कह दिया कि सांप है, और वाकई सांप नमूदार हो गया। और जब वो उछल पड़ा कि सांप है तो इतने लोगों में एक बंदा भी आपको बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। ये जो सारे लोग खड़े होते हैं ये सांप के एहतराम में खड़े नहीं हुए, सांप के शर से बचने के लिए खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल यही मिसाल है। जितने अफसरान बाला के सामने आपको मातहत मुलाजिमीन खड़े नजर आते हैं, ये उनके शर से बचने के लिए खड़े नजर आते हैं, वरना वो दिल ही दिल में ऐसी गालियां दे रहे होते हैं कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये कोई इज्जत एहतराम तो नहीं है। हमें तो वैसे धोखा लगा हुआ है कि बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा तो बड़ी इज्जत है, बेटे को अफसर बनाऊंगा तो बड़ी इज्जत है। इज्जत इस चीज का नाम नहीं है। इज्जत वो होती है जो लोग इमाम की करते हैं, हाफिज और कारी की दिल से इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। कोई दुनियावी अगराज नहीं होते, कोई लालच नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता, कोई मफादात नहीं होते, खालिस अल्लाह की रजा के लिए उनके सामने झुक रहे होते हैं। ये असल इज्जत है। तो हम कहते हैं कि मौलवी की इज्जत नहीं है, हाफिज और कारी की इज्जत नहीं है, हम तो बेटे को ये बनाएंगे ताकि उसकी इज्जत हो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने उलमा को, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा को जो इज़्ज़त दी है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं कई मरतबा दोस्तों से कहा करता हूँ कि अगर आप लोग हमें इज़्ज़त नहीं देते तो हमें तुम्हारी इज़्ज़त की ज़रूरत भी नहीं है, हमें तुम्हारी इज़्ज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप लोग मेरे कदमों के नीचे रेड कारपेट नहीं बिछाते, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते मेरे कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे मेरी किरदार कुशी करते हैं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि जंगल में चरिंद परिंद, सुराखों में चैंटियां और समुद्रों में मछलियां मेरे लिए दुआएं करते रहते हैं। अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, राय आमा को हमवार करने की कोशिश करते हो, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि मेरा अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में मेरे तज़किरे करता है। मुझे लोगों की तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लोगों की ताज़ीम और एहतराम की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि दुनिया वालों की इज़्ज़त और ताज़ीम से मुझे बेनियाज बनाया हुआ। फरिश्ते जिसके सामने कतार दर कतार खड़े हों इस्तिकबाल के लिए, जिन्नात जिसके इस्तिकबाल के लिए सहराओं में कतार दर कतार खड़े हों, तो उसको क्या ज़रूरत है कि मखलूक से इज़्ज़त और ताज़ीम की तवक्को रखे? ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम लोग कहते हैं कि उलमा की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैंने पहले तो बता दिया कि इज़्ज़त वो है ही नहीं जिसको हम समझते हैं, वो है ही कोई और चीज़, चापलूसी होती है, खुशामद होती है। असल इज़्ज़त अल्लाह ने उलमा तलबा को दी है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़क़ीह थे और वक़्त के हुक्मरान हारून रशीद के दो बेटों को पढ़ाया करते थे। दो बेटे उनके शागिर्द थे लेकिन बहुत समझदार थे। चुनांचे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जहाँ कहीं जाया करते थे, वो दोनों शागिर्द शहजादे ग़ुलामों की तरह पीछे चला करते थे। सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, इश्क वाले मुदाम चलते हैं, पीछे चलती है उनकी यूँ दुनिया जैसे पीछे ग़ुलाम चलते हैं। दुनिया ग़ुलामों की तरह पीछे चल रही होती है। चुनांचे हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद में दाखिल होते थे, जूते उतारते थे तो शहजादे जूते उठा के अदब और एहतराम से मस्जिद में ले जाया करते थे। एक दिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जब जूते उतारे तो दोनों शहजादे जूतियों पे झपट पड़े। हर एक शहजादी की कोशिश थी कि पहले मेरा हाथ पड़ जाए ताकि जूते उठाने का हक मुझे हासिल हो। दोनों के हाथ बराबर पड़ गए। अब एक ने कहा कि पहले मेरा हाथ पड़ गया था, मैं जूते उठाऊंगा। अगले ने कहा नहीं, पहले मेरा हाथ पड़ गया था, उस्ताद के जूते मैं उठाऊंगा। लेकिन शहजादे थे, समझदार थे, अपना रूमाल बिछाया, उस्ताद के जूते रूमाल में रखे। एक तरफ से एक शहजादे ने रूमाल पकड़ा,
अगली तरफ से दूसरे शहजादे ने रुमाल पकड़ा कि अदब और एहतराम के साथ उस्ताद के जूते मस्जिद में लेके चले गए। हारून रशीद की बांदी दूर महल से ये मंज़र देख रही थी। उसने जब देखा तो एक ठंडी आह खींची और कहने लगी, असल बादशाह तो ये लोग होते हैं, भला हारून रशीद की जूतियाँ सीधी करने पे कौन झगड़ता है। असल बादशाह तो ये लोग होते हैं, हारून रशीद की जूतियाँ सीधी करने पे कौन झगड़ता है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया का बयान है कि जिस रात मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, उस रात मैंने अजीब मंज़र देखा। रात के 12 बजे का वक़्त था, सर्दियों का मौसम था, तो घर के सहन की तरफ कमरे की खिड़की खुल रही थी। मैं हज़रत की तीमारदारी में खिदमत में मसरूफ़ थी। मैंने जब खिड़की खोली तो मुझे तो अजीब मंज़र नज़र आया। हमारे घर के सहन में सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए इतने लोग जमा थे कि घर में कदम रखने की जगह नहीं थी। और मैं हैरान हो गई, या अल्लाह, इस वक्त कौन लोग हमारे घर में आए। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद दारुल उलूम के तलबा और असातिज़ा हज़रत की अयादत के लिए आए हैं। फिर मैंने कहा, ये 12 बजे का वक़्त है, इस वक्त कौन अयादत के लिए आता है। अब मैं यही बात सोच रही थी कि हज़रत ने फरमाया कि मुझे पानी पिला दो। मैंने फ़ौरन पानी का प्याला उठाया, गिलास उठाया, हज़रत को सहारा दे के पानी पिलाया। फिर दोबारा हज़रत ने सरहाने के ऊपर सर रखा और पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और रूह परवास कर गई। तब मैं समझी कि ये हज़रत की रूह के इस्तकबाल के लिए फ़रिश्ते आए हुए थे। हज़रत की रूह के इस्तकबाल के लिए फ़रिश्ते आए हुए थे। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। और दोनों पीर और मुरीद के दरमियान इतनी मोहब्बत का ताल्लुक़ था कि हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछे कि मेरे पास क्या लेके आए हो, तो मैं कह दूँगा, अल्लाह, मैं क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती को लेके आया हूँ। और क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती को जब मैं आगे करूँगा तो इंशाल्लाह मेरी भी इनकी वजह से मग़फ़िरत हो जाएगी। पीर का अपने मुरीद पर इतना एतमाद था, मुरीद को अपने पीर से इतनी मोहब्बत थी कि तफसीर लिखी और तफसीर का नाम तफसीर मज़हरी रखा, शेख के नाम पे तफसीर का नाम रखा। कई मरतबा ऐसा होता था, हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ऐसी मजलिस में बैठे होते थे और अचानक फरमाते थे, भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, अभी क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ़ ला रहे हैं। और थोड़ी देर बाद लोग देखते थे क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ़ ला रहे होते थे। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा होगा, चंद दिन के बाद शाह मुरीदीन ने पूछा कि हज़रत, आपको कैसे पता चल जाता है कि क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि जब मैं देखता हूँ कि फ़रिश्ते कतार दर कतार खड़े हो गए तो मैं समझ जाता हूँ कि क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती के इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं। वो उलमा जिनके लिए फ़रिश्ते कतार दर कतार खड़े होते हैं, वो दुनिया वालों की ताज़ीम के मोहताज नहीं होते। झंग के करीब एक इलाका है गढ़ मोड़। गढ़ मोड़ से बंदा लैया की तरफ जाता है, अगर किसी ने वो इलाका देखा हुआ हो। यहाँ रेतला इलाका है, सहरा है। अब तो फिर भी कुछ आबादी बन गई, पहले तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, रेत ही रेत। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह रात के वक़्त उसी इलाके से सफ़र कर रहे थे। सर्दियों का मौसम था। हज़रत गाड़ी के अगली सीट पे बैठे हुए थे, 2 शागिर्द पिछली सीट पे बैठे हुए थे। तो अचानक हज़रत ने कार का शीशा खोला और हाथ बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर तक तो पीछे वाले शागिर्द बर्दाश्त करते रहे, सर्दी का मौसम था। आखिर पीछे एक शागिर्द ने कहा, बेतकल्लुफ़ी थी कि उस्ताद जी आप तो कुछ खाते हैं, सर्दी लगती नहीं है, हम तो सर्दी से मर रहे हैं, शीशा तो कम से कम बंद कर दें। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का अपना एक अंदाज़ था। फरमाया करते थे अपने मखसूस लहजे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इतनी जिन्नात इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, मुसाफिया तो करना पड़ता है, मुसाफिया तो करना पड़ता है। जी हाँ, तो ये हमें खामखा का ख़दशा है कि बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे, कारी बनाएंगे, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, कोई एहतराम नहीं होगा। मेरे भाई, मैं एक बात आपको बताऊं कि कदीम ज़माने में
جب بادشاہ اور سلاطین علماء اور مشائخ کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھتے تھے، اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا کرتے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی اس کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے ملک پر ایک ڈکٹیٹر مسلط ہوا جو مکے لہرایا کرتا تھا اور سب کو سیدھا کرنے کی باتیں کرتا تھا۔ وہ پہلے دن سے علماء کا مخالف تھا، پہلے دن سے علماء کا مخالف تھا، اور اس نے علماء کے کردار کو محدود کرنے کا پورا زور لگایا، اور اللہ نے دکھانا تھا دنیا والوں کو۔ جو اس نے ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت کی، ناشتے میں بلایا، اور اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں سالن ڈال رہا تھا وہ صدر، اور اپنے ہاتھوں سے گلاس میں پانی ڈال رہا تھا، اور ساتھ کہہ بھی رہا تھا کہ مولانا آپ اتنے ذہین آدمی ہیں، آپ کو کیا ہوا مولوی بن گئے، کوئی ڈاکٹر بن جاتے، کوئی انجینئر بن جاتے، بڑا مقام ہوتا، بڑا مرتبہ ہوتا۔ تو مولانا نے بڑے کمال کا جواب دیا کہ صدر صاحب، آپ کے ملک میں ڈاکٹروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، آپ کے ملک میں انجینئروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی ڈاکٹر کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے سالن ڈالا ہے؟ کسی انجینئر کی گلاس میں اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا ہے؟ آج اگر طارق جمیل کے سامنے اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کاٹ کے دینے پر مجبور ہے، یہ مولوی ہونے کا صدقہ ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، عزت کرواتا ہے، جو پرانے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ عزت کرواتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ بے جا خدشہ ہے کہ حافظ بنائیں گے، مولوی بنائیں گے تو پھر عزت کوئی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جو بے جا خدشہ ہے وہ یہ کہ اپنے بچے کو مدرسے میں ہم بھیج تو دیں گے، لیکن پتہ نہیں مدرسے والے ہمارے بچے کو خودکش بنائیں گے، پتہ نہیں بمبار بنائیں گے، پتہ نہیں کیا بنائیں گے۔ میرے بھائی، یہ بھی بے جا خدشات ہیں۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک اور کوئٹہ سے لے کر گلگت تک پورے پاکستان کے مدارس کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ہم کسی وقت بھی مدرسے میں جا سکتے ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہارا تہخانہ دیکھنا ہے جہاں تم لوگوں نے بم بارود رکھا ہوا ہے، اور ہم نے تمہارے وہ کمرے دیکھنا ہے جہاں راکٹ لانچر موجود ہیں۔ دیکھ لیں، مدرسے دیکھ لیں۔ پہلے وہ ڈنڈا تو ہوتا تھا، اب تو وہ ڈنڈی بھی منع کر دیے محتمین نے کہ نہیں، مار بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیو، مدرسے ہمارے سامنے ہیں، ان کا نظام تعلیم ہمارے سامنے ہے، نظام امتحانات ہمارے سامنے ہے، نصاب ہمارے سامنے ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی ہمارے دماغ میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ مدارس کے اندر دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، وہ بات نکلتی نہیں ہے۔ یا اللہ، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو کسی نے کوئی تربیت دی ہے کہ تم لوگوں نے خودکش حملے کرنے ہیں۔ آپ گجرانوالہ کے اندر دیکھیں، آپ لاہور میں دیکھیں، پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں، مدرسے موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ خواہ ایک بات ذہن میں بٹھائی گئی ہے کہ وہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، اور ہم نے یقین کر لیا ہے، لہٰذا مدارس سے اپنے بچوں کو دور رکھو، پتہ نہیں بچہ کیا بنے گا۔ میرے بھائی، یہ بے بنیاد خدشہ ہے۔ 3 بے بنیاد خدشات ہیں۔ پہلا خدشہ، بچے کو حافظ قاری بنائیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ دوسرا خدشہ، بچے کو حافظ قاری تو بنائیں گے لیکن اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا خدشہ یہ ہے کہ بچے کو ہم حافظ قاری بنانے کے لیے بھیج دیں گے، مدرسے والے پتہ نہیں کیا کچھ بنائیں گے۔ یہ تینوں خدشات بے بنیاد ہیں۔ اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنی اولاد پہ ترس کھائیں۔ میرے بھائیو، آج اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو وہ وقت آنے والا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو باپ کہنے کا روادار نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں آنے والا ہے، یہ میں نے غلط کہا، آ چکا ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے جب ہم صحیح تربیت نہیں کرتے۔ باپ نے محنت مزدوری کر کر کے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیٹا اپنے دفتر میں سب سے بڑا افسر لگ گیا، اور اپنے گھر آ کے اپنے گھر والوں کو کارگزاری سناتا تھا کہ اتنے لوگ میرے ماتحت ہیں، میں سب سے بڑا افسر ہوں۔ ایک دن پتہ نہیں والد کو کیا شوق لاحق ہوا کہ میں جا کے دفتر میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، اس کی عزت، اس کا مقام اور مرتبہ دیکھوں۔ چنانچہ وہ دیہات کا انداز اختیار کر کے، پھٹا پرانا لباس پہن کے، بکھرے بالوں کے ساتھ، وہ باپ بیچارہ پوچھتے پوچھتے بیٹے کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہ جو ہی دفتر کے دروازے سے داخل ہوا، بیٹا تو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ شیشے کی کھڑکیوں سے اس نے دیکھ لیا کہ میرے والد صاحب آ گئے۔ پریشان ہو گیا کہ یہاں میں لوگوں کو تعارف کراؤں گا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں،
तो फिर तो मेरी शान में कमी आएगी। लोग कहेंगे इसके कपड़ों को देखो, बिखरे बालों को देखो, देहाती अंदाज को देखो। तो अपनी शान बचाना ये तो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसके साथ दफ्तर में एक और बंदा बैठा हुआ था, तो उससे कहने लगा कि ये जो आदमी आ रहा है, ये हमारे घर में बकरियां चराने के लिए हमने चरवाहा रखा हुआ है, लेकिन चूंकि पुराना है लिहाजा मैं इज्जत और एहतराम की वजह से इसको अब्बू कहता हूं, और ये प्यार की वजह से मुझे बेटा कहता है, वरना है हमारा चरवाहा। अपने बाप को बाप कहने में भी शर्म महसूस करता है बेटा, जब उसकी तरबियत सही न हो। अच्छी तरबियत करे ताकि औलाद हमारे लिए दुनिया में इज्जत का जरिया और आखिरत में सुरखुरी का जरिया। आज लोग कहते हैं बेटे को हाफिज बनाएंगे, तो हाफिज बनाने का क्या फ़ायदा, इंजीनियर बनाओ बड़ा फ़ायदा, डॉक्टर बनाओ बड़ा हाफिज बनाने का क्या फ़ायदा। मैं मानता हूँ मेरे भाई कि जब बच्चे को हाफिज बनाएंगे तो इन आंखों से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरा अकीदा है कि जब ये आंखें बंद हो जाएंगी तो एक और जहान नज़र आएगा, और उस जहान में पता चलेगा कि बेटे को हाफिज बनाने का क्या फ़ायदा निकला। मक्का मुकर्रमा में एक आदमी अल्लाह वाला जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ था। दोपहर का वक़्त था तो नींद आ गई। तो वो फरमाते हैं कि मैंने अजीब ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकल चुके हैं और एक जगह पे एक टूली की शक्ल में बैठे हुए हैं। मैं भी वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। तो मैंने एक और मंजर देखा कि एक और आदमी आया और उस जमात के पास, उस टूली के पास खड़ा हो गया और ऐलान कर दिया कि लोगों अपनी अपनी डाक वसूल कर लो। सारे लोग एक तरफ को भाग पड़े। उनमें से एक जो बंदा था वो बैठा हुआ था, वो नहीं गया। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन लोग थे और कहाँ भागे। उसने कहा ये कब्रिस्तान के मुर्दे हैं। और वो जो बंदा आया जिसने ऐलान किया कि अपनी अपनी डाक वसूल कर लो, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आया हुआ फरिश्ता था। कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं ईसाले सवाब करते हैं, कोई सूरत फातिहा पढ़ता है, कोई सूरत इखलास पढ़ता है, कब्रिस्तान के मुर्दों को सवाब बख्शता है। तो फरिश्ता ऐलान करता है कि अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। तो मुर्दे अपना हिस्सा वसूल करने के लिए भाग पड़ते हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, आप तो यहाँ बैठे रहे। उसने कहा मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा आपको जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है। उसने कहा कि जी हाँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक बेटा हाफिज़ कुरान है। हाफिज़ कुरान है, वो रोज़ाना कुरान पढ़ाता है। जो कुरान शागिर्द पढ़ते हैं उनका सवाब मेरे बेटे के खाते में लिखा जाता है, फिर मेरे बेटे का सवाब मेरे खाते में। मुझे रोज़ाना थोक के हिसाब से इतना सवाब मिलता है कि परचून के सवाब के लिए भागने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता। उस वक़्त पता चलेगा कि अपने बेटे को हाफिज़ बनाने का क्या फ़ायदा निकला। मेरे भाइयों, क़ियामत के दिन जब सूरज एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा, आज तो सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन जून जुलाई का महीना हो, 1 बजे का वक़्त हो दोपहर का, और सूरज की गर्मी जोबन पे हो, उस वक़्त 5 मिनट के लिए धूप में खड़ा होना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। लेकिन कभी हमने गौर किया है कि एक दिन वो भी आने वाला है कि सूरज एक नेज़े के बराबर आएगा। एक नेज़े, करोड़ मील दूर नहीं, एक नेज़े के बराबर ये सूरज आएगा। ज़मीन पीतल की बनी हुई होगी और एक बालिश के बराबर भी कहीं साया नहीं होगा। और उस वक़्त 5 मिनट के लिए खड़ा होना नहीं होगा, 5 दिनों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए नहीं। कुरान अज़ीमुश्शान इस बात पे गवाह है कि क़ियामत का एक दिन 50,000 सालों के बराबर है। ये खड़ा होना होगा। उस वक़्त कुछ ऐसे सआदतमंद नौजवान होंगे जब उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले, हमने अकेले तो जन्नत में नहीं जाना, हमारे साथ वादा किया गया था कि तुम 10 बंदों को अपने साथ लेके जाओगे, हमारे साथ वादा पूरा किया जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाएं हशर के मैदान में, जो आप जिसको आप चाहें हाथ से पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाएं। ये नौजवान इधर उधर भाग रहे होंगे, मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे दादा कहाँ हैं, मेरी अम्मी कहाँ हैं, मेरे भाई जान कहाँ हैं, एक एक को तलाश कर रहे होंगे। फिर हाथ से पकड़ के जन्नत के अंदर नहर के किनारे आलीशान महल के ठंडे साए में ले जाएंगे। उस वक़्त पता चलेगा कि अपने बेटे को हाफिज बनाने का क्या फ़ायदा निकला। वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें गम और परेशानी से छुटकारा अता कर दिया। उस शदीद गर्मी से
जब बंदे को निकाला जाए और यकदम आलीशान महल के ठंडे साए में पहुंचा दिया जाए और ये बशारत दे दी जाए कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहना है, फिर पता चलेगा कि उसने सही फैसला किया था या गलत फैसला किया था। और क़यामत के दिन कुछ ऐसे बदकिस्मत नौजवान भी होंगे, जब उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले अकेले तो हमने जहन्नम में नहीं जाना, हम तबाह हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी में किसी और का हाथ था। हमें तो नहीं पता था कि इधर जाना है या इधर जाना है, हमारे बड़ों ने हमें जिस रास्ते पे चलाया हम उसी रास्ते पे चलते रहे, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअज़ल्लूना सबीला। अल्लाह, हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। अल्लाह, हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही औलाद होगी क़यामत के दिन कहेगी मेरे अब्बू ने मुझे गलत रास्ते पे चलाया था, मेरे बड़े भाई ने मुझे गलत रास्ते पे चलाया था, अल्लाह मैंने तो इनकी बात मानी थी, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, लेकिन मेरी बर्बादी में किसी और का भी हाथ है। अल्लाह उनको हमसे दुगना अजाब अता कर दे, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। मर्जी हमारी है, हम अपनी औलाद को ऐसा बनाएं क़यामत के दिन अदब और एहतराम से हाथ से पकड़ के अपने साथ जन्नत के आलीशान महल में ले जाए, या फिर गरेबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाए। ये हमारी अपनी मर्जी है। आज फैसला करने का दिन है। हमें चाहिए कि हम दिलों में अज़म कर लें, अज़म बिल जज़म कर लें कि हम अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे। बाकी ये बेजा खदशात से हम कभी मुतासिर नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।